treatment. What could be the treatment? If we want to treat or this condition, we have to increase the first one. We have to increase GABA. GABA should be increased. Okay. GABA, we can increase GABA by 4 things. The first one is, this is known as, if we increase the release of GABA. Second, block GABA transaminase enzyme. Third, proper opening of GABA channel. And the last one is reuptake. Inhibit the reuptake of GABA. चलो जी, मेडिसिन पे आते हैं हम। सबसे पहले जो हम ट्रीट करते हैं रिलीज ऑफ GABA, वी कैन गिव अ 2 मेडिसिन which is known as pregabalin or gabapentin. They will increase the release of GABA. Block GABA transaminase enzyme. This is known as the drug is known as vigabatrin. So vigabatrin will block the transaminase enzyme, by which there will be no any destruction of the GABA. Why we are so messy about this enzyme? ऑलरेडी हमारे अंदर जो है सीजर इसलिए हो रहे हैं कि GABA की डिफिशियंसी है। अगर थोड़ा सा GABA रिलीज भी हो रहा है, उसके ऊपर ट्रांसएमिनेज एंजाइम एक्ट कर रहा है और उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो GABA की डिफिशियंसी और ज्यादा होगी। सो वी हैव टू ब्लॉक द GABA ट्रांसएमिनेज एंजाइम आल्सो। द ड्रग इज नोन एज vigabatrin. Vigabatrin के अंदर द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग इन इज स्टैंड फॉर द infantile spasm. And VI stand for the visual disturbance. ठीक है। प्रॉपर ओपनिंग ऑफ GABA चैनल, इसके लिए जो हम ड्रग देते हैं that is known as thiagabin. Here the drug will be thiagabin. Okay, this is our other drug too. This is for blocking of the or reuptake of GABA. Thiagabin. This drug totally block the reuptake of the GABA. Why we are blocking the reuptake? Agar I am a neuron and I am releasing the GABA at the post synaptic cleft. अब यहां से मैं रिलीज कर रहा हूं, जितना एक्शन शो करना है न्यूरॉन पे शो करेगा, रिमेनिंग GABA आई विल रीअपटेक। ओके, अब अगर मैं इस रीअपटेक को ब्लॉक करूंगा तो मेरा GABA जो है वो ज्यादा देर के लिए वहां पे पड़ा रहेगा और उसके ऊपर ज्यादा एक्शन शो करेगा, तो इट विल नॉट लीड टू द डिपोलराइजेशन। सही है, तो इसलिए रीअपटेक को भी हम ब्लॉक करते हैं। द वन इज प्रॉपर ओपनिंग ऑफ GABA चैनल। यहाँ पे हम 2 किस्म की ड्रग यूज करते हैं इसकी प्रॉपर ओपनिंग के लिए। द वन इज बिलोंग टू द barbiturate family. And the second one is benzodiazepine. From barbiturate family, the drug of choice to treat the seizures is known as phenobarbital. Okay. From benzodiazepine, there are a variety of drugs. The first one is known as diazepam. हम देते हैं इसको फेब्राइल सीजर्स में, The second one is known as clonazepam. After that will be clobazepam. Clonazepam
we can use this in status epilepticus. दिस इज द मोस्ट रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी। अगर किसी ड्रग पे जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता तो हम क्लोनाजेपाम देते हैं। क्लोबाजेपाम, दिस ड्रग इज गिवन इन टू ब्रिंग अ hypnotic or sedative effect. Effects. They are anxiolytic in nature, so they can bring the hypnotic or anxiolytic effects. This is all about the increase of the GABA. हम GABA को कैसे increase कर सकते हैं? The first thing. Second challenge for us was पैथोजेनेसिस में जैसे हमने देखा था कि हमारे पास हाईली ग्लूटामेट होता है। इस ग्लूटामेट को हमने लो करना है। ग्लूटामेट को लो करने के लिए जो है दो चीजों को हमने ब्लॉक करना होता है टू बिकम द ग्लूटामेट लेवल लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इज नामडा रिसेप्टर एंड एमडीए एंड एम्पा रिसेप्टर। नामडा स्टैंड फॉर एन मिथाइल डी एस्पार्टेट। ओके, इसके ऊपर जो ड्रग एक्ट करता है उसको हम कहते हैं फिल्बामेट। फिल्बामेट का साइड इफेक्ट क्या है? बोन मैरो सेपरेशन। बोन मैरो सेपरेशन कॉज करता है ये। एम्पानिल, ड्रग ऑफ चॉइस इज पर एम्पानिल as nil is stand for 0, so it will block the AMPA. Okay, next this is the our second challenge which we are done with the second thing. Okay, other than this felbamate और नामडा एम्पा रिसेप्टर ग्लूटामेट लेवल हमारा हो गया है, जो ज्यादा था उसको हमने कर दिया है क्या? कम। थर्ड थिंग इज वी हैव टू ब्लॉक द कैल्शियम चैनल आल्सो। Entry of calcium. Calcium, it will be right if I write T calcium channels. Okay. इसको ब्लॉक करने के लिए हम दो ड्रग्स देते हैं। इसको ब्लॉक करने के लिए हम ड्रग देते हैं इटोसक्सीमाइड, यूज फॉर द फेब्राइल सीजर्स और एब्सेंट सीजर्स। ओके, इटोसक्सीमाइड के बारे में जो है ये लोग कहते हैं कि आप एल्डर पेशेंट के अंदर ये ना दें। For treatment of elder patient to block the T calcium channels, we use a drug which is known as trimugene in case of the absence seizures in adult. This should be the drug of choice. Okay, trimugene. Other than this, we have to block the sodium channels also. Sodium channels को block करने के लिए हम drug देते हैं। You can memorize it by a mnemonics sodium channel blockers. The mnemonics is PTCL. PTCL and rose. You can remind these drugs by the mnemonics PTCL rose. P is stand for phenotine. T is stand for the topiramate. C is stand for the carbamazepine. L is stand for the lacosamide. R is rofinamide. O is stand for oxcarbamazepine. And Z stand for zonisamide. The most asked common question in exam are, they will ask you which one of the following epileptic drug can lead to the kidney stone. Don't forget about the topiramate and zonisamide. Topiramate and zonisamide are the most common drugs which are lead to the kidney stone. अगर आप अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट इनसे कर रहे हैं तो you have to closely monitor your patient. Again, topiramate and zonisamide are the drugs which can lead to the kidney stone. Don't forget about this information. Okay. What could be the adverse effect of the carbamazepine? Carbamazepine के adverse effect क्या हो सकते हैं? हम वो देखते हैं। Let me remove this side.
From here, adverse effect of carbamazepine. Adverse effect of mazepine. इसको याद करने के लिए a beautiful mnemonics is 4A. The first one is known as auto induction. मैं बताता हूँ ऑटो इंडक्शन क्या होता है. ऑटो इंडक्शन, aplastic anemia, and also we have increased EDH. There will also be ataxia. ये है इसके एडवर्स इफेक्ट. ऑटो इंडक्शन मीन कार्बामेजेपिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता जो इसको डिस्ट्रॉय करे. So they will bring their own enzyme by its own self. It will lead to the destruction process by its own. This is known as auto induction. Aplastic anemia, जैसे कि हमने कहा कि जो फिल्मेट होता है ये बोन मैरो सेपरेशन कॉज करता है. तो अगर बोन मैरो सेपरेशन होगी देयर विल बी एनीमिया आल्सो. सेम मैकेनिज्म इसका भी होता है. कार्बामेजेपिन का ये एनीमिया कॉज करता है. सही है. और इंक्रीज ईडीएच, अगर ईडीएच का लेवल ज्यादा होगा एंटी डायरेटिक हार्मोन का तो देयर विल बी हाईली अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अगर वाटर ज्यादा होगा तो कंडीशन विल बी हाइपोनेट्रीमिया. एंड देयर विल बी एटेक्सिया. एटेक्सिया इज इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट और इसमें सेरिबेलम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर ये होता है कि कोऑर्डिनेशन कंट्रोल नहीं होती. मोस्टली कॉमन सीन किया जाता है जो अल्कोहलिज्म होते हैं, अल्कोहल इंटेक करते हैं, उसके अंदर दे विल बी लाइक दिस कंडीशन, द मूवमेंट विल बी सो इनकोऑर्डिनेटेड. टू एंड फ्रो मूवमेंट विल बी सीन इन दैट कंडीशन इज नोन एज एटेक्सिया. ओके, what could be the uses of topiramate other than epilepsy? हम इसको देखते हैं कि टोपिरामेट को हम और किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं. टोपिरामेट other important uses. This you can remind by a mnemonics known as COMB. हम देखते हैं कि कॉम में क्या आता है. यू कैन यूज टोपिरामेट टू अवॉइड अल्कोहल क्रेविंग. सो क्रेविंग ऑफ अल्कोहल इनहिबिशन के लिए हम टोपिरामेट यूज कर सकते हैं. ऐसे लोग जिनको तलब होती है अल्कोहल पीने की, वो तलब को आप खत्म कर सकते हो बाय गिविंग टोपिरामेट. बट डोंट फॉरगेट अबाउट टोपिरामेट कैन कॉज किडनी स्टोन. ओके. ओ, you can use it to avoid obesity. Obesity treatment के लिए भी आप यूज कर सकते हो. No doubt the drug of choice for decreasing weight or treatment of obesity is metformin, but you can also give topiramate. It can also have very useful effect. M is stand for migraine headache. If someone have migraine headache, you can also give topiramate headache treatment. And B is stand for the bipolar disorder. You can also give it in a bipolar disorder which is known as mania and depression. Okay, here next, what could be the adverse effect of the phenytoin? Okay, let me discuss about this. Adverse effect of phenytoin. You can remember this one by a beautiful mnemonic which is known as Hot Malika. Hot, MAN, Malika. Again, beautiful. Hot, it stands for the Hirsutism. अगर कोई फीमेल है, अगर उसको आप ट्रीट कर रहे हैं by giving a phenytoin, maybe she develop a hair on her chest or other abnormal or other areas rather than just like face. There will be hirsutism, condition of formation of hairs. Okay, O is stand for osteomalacia. T is stand for they can lead to the tetragenic effect.
Teratogenic effect. M is stand for megaloblastic anemia. Blastic anemia. It means that they can also cause deficiency of folic acid or vitamin B12. A is stand for the arrhythmia. Arrhythmia. And L stand for lymphadenopathy. Lymphadenopathy. Mean there will be swelling of the lymph node. I stand for resistance of insulin. Insulin resistance. Resistance. K, there will be deficiency of vitamin K. Vitamin K deficiency. And A for sure, this is known as ataxia. So these are the adverse effect of the phenytoin. You can memorize it by a mnemonics Hot Malika. Okay. All about the sodium blocker. Good. Next, the recent survey they are done by which इनका कहना है कि जो अगर पोटाशियम ओपनर भी दे हम तो हम सीजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज द रिसेंट सर्वे. और यहाँ पे जो है ओपनर के लिए हम देते हैं रेटिगेबिन एंड इजोगेबिन. दे विल ओपन द पोटाशियम चैनल और पोटाशियम लीक करेगा जिसकी वजह से वो सेल के अंदर नेगेटिविटी लाना शुरू कर देगा. ओके, all about the we increase the GABA. After that the second challenge glutamate decrease करना. फिर कैल्शियम को ब्लॉक करा हमने, सोडियम चैनल को भी ब्लॉक किया, उसके साथ हम पोटेशियम को ओपन करा. The most important drug which I am going to discuss, the important drugs are two other important drugs which is known as valproic acid. Valproate or Trimugen. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका समझने के लिए वालप्रोवेट जो है दे हैव हाई एबिलिटी टू ब्लॉक कैल्शियम चैनल्स, आल्सो दे हैव एबिलिटी टू ब्लॉक द सोडियम चैनल्स, दे आल्सो हैव एबिलिटी टू डिक्रीज द गाबा ग्लूटामेट एंड दे आल्सो हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द गाबा. सो एक ड्रग सारे एक्शन दिखा रहा है. ये गाबा को भी इंक्रीज कर रहा है, ग्लूटामेट को डिक्रीज कर रहा है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है, कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर रहा है. सही है. और ये सारे एक्शन ये सिर्फ अकेले दिखा रहे हैं. वालप्रोवेट के साइड इफेक्ट्स को याद करने के लिए हम इस वालप्रोवेट को यहाँ पे लिखेंगे और इसके साइड इफेक्ट्स को हम निकालेंगे इसमें से. ठीक है. VALPROTE. Valproate. V is stand for the vomiting, alopecia, ganjapan. It can also cause liver toxicity, can cause pancreatitis. It can also lead to the rashes. It can also cause obesity, ataxia and teratogenic effect. All these are the adverse effect of the valproic acid. Okay, you can memorize it by its own name. Valproate के अंदर vomiting, alopecia, liver toxicity, pancreatitis, rash, obesity, ataxia और teratogenic effect. Teratogenic effect mean कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर ये एब्नॉर्मलिटी कॉज करता है. ट्राइमोजेन, अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट ट्राइमोजेन हम जो है देते हैं यंग एडल्ट के अंदर. और ट्राइमोजेन का जो है ग्लूटामेट को ब्लॉक करता है, डिक्रीज करता है, गाबा को इंक्रीज करता है और ये ब्लॉक करता है कैल्शियम चैनल को. सही है. एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ट्राइमोजेन इज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम. ठीक है, ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करता है. दिस इज ऑल अबाउट द एपिलेप्सी, देयर ट्रीटमेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग. सो after this also one important thing is the blocking of sp2 receptor. sp2 receptor कौन से होते हैं? सेनेप्टो जो वेजल्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये रिसेप्टर बाइंड होते हैं और उस रिसेप्टर के थ्रू क्या होता है. लेट मी ड्रॉ हियर अ न्यूरॉन और उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सा वेजल्स होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल बॉडी एंड हियर इज द एक्सॉन. सेल बॉडी के अंदर हम देखते हैं here is vesicle. फॉर एग्जाम्पल सपोज कर रहे हैं हम
इस वेसिकल के ऊपर यहाँ पे होता है सिनेप्टोब्रेविन, ठीक है, जो कि इधर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अलग से एक सिंटेक्सिन होता है, अदर रिसेप्टर साइड होता है। जैसे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, ये जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ये वाले जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, मेम्ब्रेनल रिसेप्टर्स, ये ऐसे नॉर्मली ब्लॉक होते हैं, ठीक है, और ओपन नहीं होते, क्लोज फॉर्म में होता है। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम इसके इस एंड के ऊपर बाइंड हो जाता है और इसको खोल देता है एंड इट बिकम लाइक दिस, ठीक है। सेम जो वेजल्स के ऊपर है, दिस इज द वेजल्स एंड हियर वी हैव अ लॉट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनसाइड दिस बैग, और इसके ऊपर अलग रिसेप्टर लगा हुआ है। जब ये रिसेप्टर खुल जाता है तो दे बिकम बाइंड। अब बाइंड होने के बाद दे विल पुल दैट वेसिकल और ये रप्चर होगा, रप्चर होने की वजह से और न्यूरोट्रांसमीटर विल बी रिलीज व्हिच इज नोन एज, अगर हम बात कर रहे हैं एपिलेप्सी रिलेटेड, ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये आल्सो, दिस इज आल्सो नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर अस, वी हैव टू ब्लॉक दिस आल्सो। द ड्रग which is used for this is citam, levetiracetam and brevactam. They are the drug of choice to block the sp2 receptors. अगर ये ब्लॉक होंगे तो जो है मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होगी, ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा। तो ग्लूटामेट जब नहीं रिलीज होगा तो उसकी वजह से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है ब्लॉक होंगे और एक्साइटेशन कॉज नहीं होगी अगले न्यूरॉन के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट एपिलेप्सी।